Bismillahirrahmanirrahim, class 7th. Hope you all are doing well. Today we will start our computer subject for class 7th. Let's talk about this book. It is very interesting. This book is activity based lessons. Each and every lesson are well supported with activities, attractive illustration. This book is occupied with attractive illustration. The focus of the book is on practicality of the computer. The focus of the book is on practicality, and it includes interesting facts and information about every topic being covered. So see, projects are included in the units of application software. Access of the learning of student exercises are given at the end of each and every unit. The contents of this book are very easy, students friendly, and based on National Curriculum 2007. The special features of this book are that it is activity based and attractive illustration. Okay, so the fact and necessities that children should be introduced and familiarized with the computer at an early age in a practical way. They should be at home at use when they are in practical life. To meet this, and the series of book has specifically been designed with the aim to impart learning in a simplified and fun-loving way. So let's see how much chapters we have in this book. We have almost 5 chapters. 4 chapters in this book. Let's see which is our first chapter. First unit is hardware basics. The second unit is software basics. Third is customizing a Word document. And the fourth one is multimedia presentations. And the fifth, electronic mail. So we have 5 chapters of this in this book. So these 5 chapters we have divided into 2 parts. As you know that we have 2 terms, first term and second term. So 3 units we will read and learn in first term, and the remaining chapters we will learn in second term. So our first unit is about hardware basics. Contents we have introduction to computer, software, hardware. These are their subtopics. Second topic is system unit. It is also have subtopics: motherboard, processor, arithmetic, logic unit, control unit, memory, random access memory, read-only memory, expansion cards, expansion slots, cutting edges technology, barcode reader, fingerprint reader, robots, and then exercise. So come to the introduction of chapter. Okay, when we learn this chapter, you will be able, after completing this unit, define system unit, recognize and explain motherboard and processor, which is also known as control unit and arithmetic logic unit. Explain memory, RAM and ROM, recognize and explain expansion cards and expansion slots, explain briefly barcode reader, fingerprint and reader and robot. So you will be able to cover these topics at the end of the lesson. It is an introduction. Physically, a computer is a combination of different hardware devices such as a system unit, monitor, keyboard, mouse, printer, etc. In this unit, student will learn about system unit and its internal components such as motherboard, processor, RAM, ROM, expansion cards and expansion slots, etc. Students will also learn briefly about cutting edges technologies such as barcode reader, fingerprint reader and robots. So it was the introduction. Now let's start the first topic, which is from unit 1, introduction to computer. Here we will learn that what is computer.
So many of students does not have interaction with the computer before that. That is my responsibility that every student easily understand, though he or she does not have any prior knowledge about computer. So let's start the topic. The first question which comes in your mind, that what is computer? So our first topic is introduction to computer. In previous classes we have already studied the definition of computer and its basic components. We will review them here. अच्छा, यहाँ वो बता रहा है कि जो आपकी प्रीवियस क्लास है वहाँ पर आपने सारी बेसिक नॉलेज ली है दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर. आप इस काबिल हैं कि आप कंप्यूटर को डिफ़ाइन कर सकें, एक सिंपल रॉ सी डेफिनेशन आप रफ सी दे सकें उसको कि कंप्यूटर क्या है. अब कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक बिल्कुल रफ सी डेफिनेशन है जो कि हम हर जगह यूज़ करते हैं. दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस विच प्रोसेस रॉ डेटा. ठीक है, रॉ डेटा क्या है, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है रॉ डेटा, विच इज़ व्हाट इज़ रॉ डेटा. रॉ डेटा इज़ समथिंग अनप्रोसेस्ड आइटम. Okay, actually in computer is electronic device that accepts data. ठीक है, जो हमसे डेटा एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस इट एंड देन कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो रॉ डेटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड आइटम होता है जिसके ऊपर बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ होता, उसको कहते हैं रॉ डेटा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनपुट, क्योंकि वो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं. Again, see, a computer is an electronic machine which processes raw data, input into meaningful information, output, and also stores output for later use. कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ डेटा को प्रोसेस करती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में और उसको स्टोर करती है, जिसे हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जो आउटपुट वो हमें जो रिज़ल्ट देती है, लेट सपोज हम उसको कमांड देते हैं 1 + 1 = 2. ठीक है, तो अगर हम इस कमांड को सेव कर लेते हैं कंप्यूटर में तो वो हम 10 दिन बाद भी खोलें तो वो हमारे पास सेव होती है वो इंफॉर्मेशन. सो ये है आपका पर्सनल कंप्यूटर जो हर किसी के पास होता है. इट कंटेन्स सेवरल हार्डवेयर्स, मॉनिटर, कीबोर्ड्स, स्पीकर्स, माइक, CPU, प्रिंटर, माउस, ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं इसके. ठीक है, हार्डवेयर इज़ समथिंग टचेबल, जिसको हम टच कर सकते हैं उसे हम कहते हैं हार्डवेयर. ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर विच इज़ अनटचेबल, जिसे हम नहीं टच कर सकते. तो कंप्यूटर के ये वाले जो पार्ट्स हैं ये हार्डवेयर कहलाते हैं और उसके अंदर की जो मशीनरी होती है दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू ये चलता है विच इज़ कॉल्ड विंडोज़ एंड अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो इसकी ऐप्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं. अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं एंड इसके अंदर की जो मशीन है. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिस पर हम बात कर रहे थे कि हार्डवेयर क्या होती हैं, इसके फिजिकल थिंग्स जो होती हैं कंप्यूटर की, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. और जो प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर जिसके थ्रू कंप्यूटर चलता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये देखिए चार्ट बना है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन दो चीज़ों के ऊपर कंप्यूटर चलता है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर. ठीक है जी, क्या है सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर. क्या है, इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कि स्पेसिफिक काम, यानी अभी आपको मैंने काम दिया है उर्दू की क्लास में कि आपने ये टॉपिक करना है, तो उस उर्दू के काम को आप कंप्यूटर, जब आपको कंप्यूटर टीचर पढ़ा रही है तो आप उर्दू की बुक कंप्यूटर की क्लास में नहीं निकाल सकते. क्यों, कि वो टीचर आई है आपको कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है आपको कंप्यूटर पढ़ाना है. या आपको मैथ्स की टीचर आई है तो उसका स्पेसिफिक टास्क है मैथ्स पढ़ाना, वो आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं पढ़ा सकती. ठीक है, तो इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं अपना उनका टास्क होता है. ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर यूज़ होते हैं, बैंक्स में, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हर कंप्यूटर का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है. अकाउंट्स के अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं.
तो हर स्पेसिफिक टास्क का अपना सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम भी हम इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एमएस वर्ड, कोरल ड्रॉ, डिवाइस ड्राइवर्स एक्सेट्रा। सो लेट्स सी, ये जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का काम नहीं कर सकते, ठीक है। विंडोज़ जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो विंडोज़ ही है, ठीक है, वो डिवाइस ड्राइवर का काम नहीं कर सकती, ना वो एमएस वर्ड का काम कर सकती है। तो इन फ्यूचर जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इसे डिटेल से कवर करेंगे कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और हार्डवेयर्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, तो हम डिटेल से इस पर बात करेंगे। आज हमने आपको बताया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कंप्यूटर का, कि हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो कंप्यूटर क्या है और इसको हम कैसे पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और आपके कंटेंट्स क्या क्या हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं। तो आपके फर्स्ट टर्म की सिलेबस में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट इंक्लूड है और ये रिमेनिंग 2 यूनिट्स जो हैं तो ये हम सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जैसे जैसे आप अपना टाइटल पेज रेडी करते हैं और अपनी कॉपी का फर्स्ट पेज जैसे हम रेडी करते हैं, उसी तरह जब आप रिटर्न वर्क करेंगे तो आप इसी तरह से अपना सिलेबस राइट करेंगे। 3 चैप्टर्स को आप इंक्लूड करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए और फिर जब हम इंशाल्लाह सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे तब तक स्कूल ऑन हो चुका होगा, तब हम इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको इस इंट्रोडक्शन की भी समझ आ गई होगी और हार्डवेयर की बेसिक्स की भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करेंगे, तो इसको हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।